Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 3 of exercise 11.3. Now in question number 4, we have to calculate the size of each letter angle in the following figure. So first part, जो figure है, that is something like this. As you can see, यहाँ पे दो triangle है side by side, right? ये angle mentioned है 32 degree. This arm is equal to this arm and this arm is equal to this arm, right? ये angle है X, ये है Z, ये angle है Y. तो सबसे पहले A, B, C and D, right? अब हम लोग शुरू करते हैं. इन ट्रायंगल ABD, मतलब ABD, हम लोग ये ट्रायंगल को पहले डील करते हैं, राइट? तो इसमें दिया हुआ है AD इज इक्वल टू BD, राइट? रीजन हो गया गिवन. Therefore, X is equal to angle A is equal to 32 degree. यहाँ रीजन क्या हो गया? Angle opposite equal sides are equal, right? तो X का वैल्यू हम लोगों को मिल गया. अब जब हम लोगों को इस ट्राइंगल में दो एंगल पता चल गया, सो वी कैन इजिली फाइंड आउट द थर्ड एंगल. सो अगर हम लोग ये तीनों को ऐड करते हैं तो हमारा सम कितना होना चाहिए? 180. ये देखिए, x प्लस 32 प्लस एंगल ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? रीजन क्या हो गया? सम ऑफ the angles of a triangle, right? और एंगल ADB को यहीं रखते हैं, रेस्ट. सो 180 माइनस 32 और x का वैल्यू हम लोगों को 32 मिला था, सो वो भी माइनस 32. माइनस क्यों हुआ? बिकॉज वी आर शिफ्टिंग देम फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, राइट? सो एंगल ADB इज इक्वल टू 180 माइनस 64. इन दोनों को ऐड कर दिए, राइट? तो हमारा आंसर आ रहा है 116 डिग्री. सो ये वाला जो पर्टिकुलर एंगल है ADB, उसका वैल्यू है 116 डिग्री. सो इन ट्रायंगल ABD हम लोगों को तीनों एंगल का वैल्यू पता चल गया है. तो अब हम लोग शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट ट्राइंगल में, विच इज ट्राइंगल BDC. सो इन ट्राइंगल BDC क्या बोला गया है? BD इज इक्वल टू BC. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसीलिए रीजन हो गया गिवन, राइट? देयरफॉर एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BCD. ये देखिए BDC मतलब ये जो y है, आप यहाँ ब्रैकेट में y लिख दीजिए, राइट? इज इक्वल टू एंगल DCB. रीजन क्या है? एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट? सो अब हम लोग क्या करेंगे? y का वैल्यू पता करेंगे. सो y प्लस 116 डिग्री इज इक्वल टू 180. रीजन है स्ट्रेट लाइन. यहां लिखिए एंगल D. एंगल D जो है, ये देखिए एंगल D, ये पूरा ये स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों को मिला के हो रहा है एंगल D. So y plus 116 is equal to 180 और y is equal to 180 minus 116.
that gives us 64 degree. So y का वैल्यू हम लोगों को मिल गया 64. Therefore angle BCD is equal to 64. Right? अब हम लोगों को निकालना है Z. Therefore Z plus angle BDC plus angle DCB is equal to 180 degree. Reason हो गया sum of the triangle. So sum of the angles of a triangle. Therefore Z is equal to 180 minus BDC और y का वैल्यू क्या था जो हम लोग कैलकुलेट किए थे प्रीवियसली 64. So 64 minus 64 that gives us 180 minus 128 which is equal to 52 degree. So x is equal to 32 degree, y is equal to 64 degree and z is equal to 52 degree. Now second part of question number 4. फिगर कुछ इस तरह है. Let me draw. Now this angle is 35 degree. This arm is equal to this and this is equal to this. ये तीनों एक है. This angle is y and this exterior angle is x. तो हम लोगों को x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है. So ये पॉइंट A, B, C and D. तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इन ट्रायंगल A, B, D. BD is equal to DA. BD is equal to DA. Reason है given, right? Therefore, angle DBA is equal to angle BAD is equal to 35 degree. Reason क्या है? Angle opposite equal sides are equal. तो हम लोगों को ये दो का वैल्यू मिल गया. So we can easily find the third angle of this particular triangle. So angle ADB plus angle DBA plus angle BAD is equal to 180 degree. Sum of the angles of a triangle, right? तो ADB तो हम लोग को फाइंड आउट करना है और एंगल ADB प्लस DBA का वैल्यू हम लोग को 35 मिला था. सो इसका वैल्यू था 35 प्लस 35 इज इक्वल टू 180 और एंगल ADB is equal to 180 minus 70 which is equal to 110 degree. तो हम लोगों को एंगल ADB का वैल्यू पता चल गया. In short, in triangle ABD we have got the value of all the three angles. Now we are going to move on to the next triangle which is in triangle ADC, comma AD is equal to AC. Reason है given. Therefore, angle ADC और Y is equal to angle ACD, right? Reason हो गया angles opposite equal sides are equal. अब यहाँ पे देखिए ये जो लाइन, ये जो पॉइंट D है, राइट? D इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन है स्ट्रेट लाइन, राइट?
So angle ADB plus angle ADC is equal to 180 degree. So ADB का वैल्यू हम लोगों को पता है, which is ये देखिए 110 लिख दिए, प्लस एंगल ADC इसको फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल ADC इज इक्वल टू 180 माइनस 110, दैट गिव्स अस 70 डिग्री. सो ADC और Y, राइट. सो Y का वैल्यू हम लोगों को मिल गया 70 डिग्री. जैसा कि मैंने प्रीवियसली प्रूव कर दिया था दैट एंगल ADC और Y is equal to angle ACD which is equal to 70 degree, right? तो अब अगर हम लोगों को किसी ट्रायंगल का दो एंगल पता चल गया, so we can easily find out the third angle. तो चलिए शुरू करते हैं. So angle ADC plus angle ACD plus angle DAC is equal to 180 degree. Reason is sum of the angles of a triangle. और अब यहाँ पे सबका वैल्यू बैठाते हैं. 70 plus 70 plus angle DAC is equal to 180 degree, और एंगल DAC is equal to 180 minus 140 which is 40 degree. Alright, अब ये जो पर्टिकुलर एंगल है एंगल A कौन कौन सी एंगल को लेके बना है, चलिए आपको बताते हैं. एंगल BAD, एंगल BAD प्लस एंगल DAC प्लस X, राइट. सो एंगल A ये तीनों एंगल को कंबाइन करके बना है. Y और एंगल A वो क्या है 180 डिग्री. Why? Because it is a straight line. So अब यहाँ पे BAD का वैल्यू हम लोगों को पता है 35 प्लस DAC 40 प्लस X is equal to 180 degree, और X is equal to 180 minus 75 which gives us the answer 105 degree. Therefore, X is equal to 105, Y is equal to 70 degree. So this is the answer. Now question number 5. If the angles of the triangle are in the ratio 1:2:1, then we need to find all the angles of a triangle. Our second part है we need to classify the triangles in two different ways. तो चलिए शुरू करते हैं. So let all the angles be X. They are in रेशियो, क्या रेशियो है 1:2:1 which is equal to 1x:2x:1x, राइट. अब यहाँ पे इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये देखिए 3 एंगल दिया है, इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो इट शुड कम टू 180 डिग्री. तो 1x plus 2x plus 1x is equal to 180. रीजन हो गया sum of the angles of a triangle. अब यहाँ पे जो 1x है आप सिर्फ x भी लिख सकते हैं, और ये हो गया 4x is equal to 180 और x is equal to 180 by 4. So after reducing x का वैल्यू निकला 45 डिग्री. सो अब ये देखिए तो 1x क्या हो गया 1 into 45 that is 45 डिग्री. फिर आया 2x which is 2 into 45 that is 90 डिग्री. और थर्ड रेशियो क्या था अगेन 1x
So 1 into 45 is again 45 degree. अब देखिए अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं 90 plus 45 plus 45 gives us 180 degree. तो ये तो हो गया. अब सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था क्लासिफाई द ट्रायंगल्स इन टू डिफरेंट वे. तो सबसे पहले देखिए उसमें एक एंगल 90 डिग्री है. सो नो डाउट ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, राइट. और दूसरा क्या होगा, गौर से देखिए, टू ऑफ इट्स एंगल्स आर इक्वल. तो ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल. क्वेश्चन नंबर 6. In an isosceles triangle, a base angle is 4 times its vertical angle. Find all the angles of the triangle. सबसे पहले ये बताइए isosceles triangle क्या है. Isosceles triangle is a triangle where two of its angle are equal, right? ये देखिए एक रफ स्केच हम बना रहे हैं. A, B, C, ये है हमारा बेस, राइट. बोला गया है बेस एंगल. ये है बेस एंगल और वर्टिकल एंगल कहाँ है, जो उसके ऊपर है, राइट. तो अब बोला गया है दैट बेस एंगल इज 4 टाइम्स इट्स वर्टिकल एंगल, राइट. सो लेट द वर्टिकल एंगल बी एक्स, यानी कि ये जो ए है एंगल ए दैट इज एक्स, और जो बेस है बेस angle is 4 times the vertical angle which is 4x. तो यानी ये भी 4x है और ये एंगल भी 4x है. क्यों, क्योंकि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है. रिमेंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है. दैट मीन्स टू एंगल इज इक्वल. therefore x plus 4x plus 4x is equal to 180 degree. रीजन है sum of the angles of a triangle, right? और 9x is equal to 180 degree और x is equal to 180 divide by 9. इसको जब रिड्यूस करते हैं हमारा आंसर आएगा 20 डिग्री. सो x का वैल्यू तो हो गया 20. 4x क्या हो जाएगा, 4 into 20 which is 80 और 4x तो 2 बार है, राइट. तो ये देखिए x 20 डिग्री, 4x एंड 4x हो गया 80 डिग्री ईच. अब इन तीनों को आप ऐड करिए, आ गया ना 180 डिग्री, राइट. हम लोग इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का तीनों एंगल का वैल्यू फाइंड आउट कर चुके. थैंक यू.